وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھو دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے، اور یہ ہر ایک کا مشاہدہ تجربہ ہے کہ دنیا میں بھی کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی جاتی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس ذات نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ علماء نے یہاں پر کہا قدم اللہ تعالی موت عبدی علی حیاتی، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی موت کو اس کی زندگی پر مقدم کیا آیت مبارکہ میں۔ حالانکہ انسان پہلے زندگی گزارتا ہے، بعد میں موت آتی ہے، لیکن آیت میں اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا پھر زندگی کا تذکرہ کیا۔ علماء نے جواب دیا کہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان، جو مسلمان اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، وہ آزادی والی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، وہ منچائی والی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، وہ تو ایسی زندگی گزارے گا جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچے کہ تم میں بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ علامہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا لیبلوکم ایکم اتم عقلا و فہما، تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، کون سب سے زیادہ سمجھدار ہے، کون ہے جو بھوکے کے گھر میں آخرت کو یاد رکھتا ہے، کون ہے جو دار پانی میں دار بقا کو یاد رکھتا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد وہ فقط آخرت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، کہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آسمان زمین جتنا نظام کائنات حرکت میں نظر آتا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے اتنا بڑا نظام انسانوں کے لیے بنایا گیا، اتنی بڑی کائنات انسانوں کے لیے وجود میں آئی، پھر آخر انسان کو تو بھی بنانے کا کوئی مقصد ہوگا؟ فرمایا وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ارے تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے فکر میں رہے، اس میں کامیاب ہونے کی کوشش میں رہے، اس کے تعلق سے سوچے، فکریں کرے کہ آخر مرنے کے بعد میرے کیا ہوگا، میں مرنے کے بعد کامیاب کیسے ہو جاؤں گا۔ مرنے کے بعد بڑے بڑے مسائل ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، پھر قیامت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مرحلہ، پھر جنت کے فیصلے، یہ جہنم کے فیصلے ہیں۔ اس پوری زندگی میں کامیاب کیسے ہو جاؤ، ان فکروں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بامقصد زندگی ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ کئی سے ان پر آخرت کی فکر کا غلبہ تھا، کئی سے آخرت کی فکر ان پر تھی کہ ہر وقت بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے گھر میں ہو یا بازار میں ان کا آخرت یاد آیا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سر ان کے بیوی کے گود میں ہے، خواہشات کی جگہ ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بیوی رونے لگی۔ انہوں نے سوال کیا بیوی سے تو بیوی نے کہا تم کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ کہنے لگے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آئی، اللہ فرما رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر ہے کہ اس کو پلسرا سے گزرنا نہ پڑے۔ پتہ نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں جب میں سوار ہو جاؤں گا
होगा तो मेरी वापसी कैसे हो जाएगी। ख्वाहिशात के मकाम पर इनको आखिरत याद आ रही है। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ करे। कब्रिस्तानों में जाकर उठे हुए जनाजों को देखकर कभी हमको आखिरत याद नहीं आती, कभी ख्याल भी नहीं आता कि जनाजा आज इसका जा रहा है, एक वक्त आएगा कि ऐसे मेरा जनाजा उठाया जाएगा। याद रखना, ये गफलत की कमी, ये गफलत हमको खून के आंसू रुलाएंगी। आज कोई एहसास नहीं है। हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को दुआ में रोता हुआ देखा, उसके सामने खड़े रहे थोड़ी देर, उसके बाद कहने लगे शाबाश शाबाश है उन लोगों के लिए जो दुनिया में अपने ऊपर रोते हैं। अगर दुनिया में न रोए तो कयामत के दिन रोना ही पड़ेगा, जो कोई काम नहीं देगा। और इसी सर रहमतुल्लाह फरमाते थे कल कयामत के दिन इंसान उन लोगों को देखेगा जिन्होंने अपनी जात पर मेहनत की थी, दीन के एतबार से, आखिरत के एतबार से। कयामत के दिन इंसान इनको देखेगा, रोना शुरू करेगा, इतना रोएगा अगर वाले इसी सर रहमतुल्लाह अलैह के तो उसके आंसुओं के समंदर बहने लगेंगे। लेकिन दोस्तों अजीजों कामयाबी नहीं मिल सकती है। दूसरा वाकया कि कैसे सहाबा के अंदर इस्तिजार आखिरत थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये अपने घर में बैठी हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद है। तो हजरत आयशा की आंखों से आंसू जारी हुए। पूछा अल्लाह के रसूल ने कि आयशा तुमको क्या हुआ, कोई तकलीफ है, परेशानी है? कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे जहन्नम याद आया। क्या याद आ रहा है? जहन्नम याद आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया कि अल्लाह के रसूल हल तज़कुरू अहलीकुम यौमल क़ियामा, क्या आप अपने घर वालों को क़यामत के दिन याद करोगे? घर वाले याद आएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐशा सुनो, अम्मा फी सलाती मवातिना फला यज़कुरु अहदुन अहदा। ऐशा 3 जगह क़यामत में ऐसी होगी जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। पहली जगह इंदल मीज़ान हत्ता यअलम अयकिफु मीज़ानु बिस्कुल, जब तराजू तोला जाएगा यहाँ तक के मालूम हो जाए कि किसका नाम है अमाल, किसका पल्ला वो नेकियों की वजह से छूट जाता है या गुनाहों की वजह से भारी हो जाता है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत बयान की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन इब्न आदम को लाया जाएगा, तराजू के बीचों बीच रखा जाएगा, दाएं जानिब में उसके हसनात का पल्ला होगा, बाएं जानिब में सय्यात का पल्ला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अगर नेकियों का पल्ला छुप जाएगा फरिश्ता ऐलान करेगा, जिसको पूरा महशर सुनेगा सईद फुलान सआदतन ला यशका बअदहा अबदा। अरे सुनो, फुला शख्स कामयाब हो चुका है, फुला शख्स कामयाब हो चुका है, अब वो कभी नाकाम नहीं होगा, अब वो कभी अपनी नाकामी नहीं देखेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके गुनाह ज्यादा निकलेंगे, जिसने दुनिया में अल्लाह को नाराज किया होगा, गुनाह करते करते जिंदगी गुजरी होंगी और गुनाहों का पल्ला झुक जाएगा, फरिश्ता ऐलान करेगा, पूरा महशर उसको सुनेगा शकी फुलान शकावतन ला यसद बअदहा अबदा। अरे फुला शख्स नाकाम हो चुका है, फुला शख्स बर्बाद हो चुका है, फुला शख्स हलाक हो चुका है, फुला शख्स बदबख्त हो चुका है, अब वो कभी कामयाब नहीं होगा। ये पहली जगह होगी जहाँ पर कोई किसी को याद नहीं करेगा। दूसरी जगह वाइंदर कुतुब हत्ता युकाला हाउ मुकरऊ किताबिया, जब नामे अमल तकसीम किए जाएंगे, जिंदगी के रिजल्ट बांटे जाएंगे, लोगों जरा देखो तुमने जिंदगी में क्या किया था, सब लिखा हुआ है। हत्ता यअलम हत्ता यकुल हाउ मुकरऊ किताबिया, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि देखो मेरा नामे अमल पढ़ लो, मैं तो कामयाब हो चुका। कुरान करीम ने 3 तरह का तज़किरा किया है जिनका नामे अमल तकसीम होगा। तो फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयकुलु हाउ मुकरऊ किताबिया, कयामत के दिन जिनका नामे अमल, जिनका रिजल्ट उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फयकुलु हाउ मुकरऊ किताबिया। अरे वो कहेगा कयामत के दिन अरे मेरा नामे अमल पढ़ लो। मुफस्सिरीन ने फरमाया महशर में घूमेगा, लोगों के पास जाएगा, बताएगा जैसे आज दुनिया में कोई स्कूल वगैरह में अच्छे नंबर लाता है, जहाँ जाकर अपना रिजल्ट दिखाता है, कयामत के दिन भी जहाँ जाकर अपना नामे अमल बताएगा, लोगों देखो मैं तो कामयाब हो चुका हूँ, अब मैं हमेशा खुशियाँ देखूंगा, नाकामियों का गम का खात्मा हो चुका है। अरे लोग ताज्जुब से पूछे
पूछेगी, अरे तेरी कामयाबी की क्या वजह है, तू इतना खुश क्यों नजर आता है, दुनिया में जरा गमगीन दिखता था। वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, अरे मुझे गुमान था जब मैं दुनिया में था तो मैं समझता था कि एक दिन मेरा हिसाब हो जाएगा, एक दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती थी, इन्नल मुमिना कव्वामुन अला नफ्सी, मोमिन अपने नफ्स पर निगहबान होता है, युहासिबु नफ्सहु लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, वो अल्लाह के लिए अपना मुहासबा करता है नफ्स का। व इन्नमा खफ़ल हिसाबु यौमल क़ियामती अला कौमिन हासबु अनफुसहुम फिद दुनिया, क़यामत के दिन हिसाब उन लोगों पर आसान होगा जिन्होंने दुनिया में अपना मुहासबा किया होगा। कभी कभी सोचा होगा कि आखिर मेरी जिंदगी गुजर किधर रही है, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के काम कितने पूरे कर रहा हूँ, मैं कितना आखिरत की तैयारी में लगा हूँ। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे अगर इसी हालत में मैं मर गया, इसी हालत में मौत आ गई तो मेरा क्या होगा। आदमी दुनिया में सोचता रहे और वो फिक्र करता रहे आखिरत की, ऐसे लोगों का हिसाब कयामत के दिन आसान होगा। वइन्नमा शक्कल हिसाब यौमल क़ियामती अला कौमिन अखज़ु अदल अम्र मिन गैरि मुहासबा, कयामत के दिन हिसाब उन लोगों पर सख्त होगा जिन्होंने दुनिया में कोई फिक्र नहीं की होगी, कोई मुहासबा नहीं किया होगा, मनचाही जिंदगी गुजारी होगी, दिन भी कट रहा है रात भी कट रही है, मकसद क्या बनाओ, कमाओ खाओ और इसी हालत में जिंदगी गुजारो और इसी हालत में दुनिया से चले जाओ। दोस्तों अजीजों, इस जिंदगी से धोखा तो मिल सकता है, कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी वही शख्स होगा जिसके दिल में आखिरत का गम होगा, जो आखिरत में कामयाब होते के ताल्लुक से पुरता होगा, वही कामयाब होगा। बाएं हाथ वालों को कुरान ने तज़किरा किया, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिनका नाम अमाल, जिनका रिज़्क़ उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो लोग कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश के रिज़्क़ न मिलता तो अच्छा होता, या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, अरे मुझे मालूम ही ना होता मेरा हिसाब क्या है, या लैतहा कानत क़ादिया, ऐ काश के मोती पर मेरा काम तमाम हो जाता, मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कुछ काम न आया, हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा सारा जोर मुझसे जाता रहा, खुज़ूहु वग़ुल्लू, कुरान कहता है इसके बारे में अल्लाह हुक्म देके फरिश्तों पर कि इसको पकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको जहन्नम में फेंक दो, सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर इसको ऐसी जंजीर में पिरो दो जिसकी पैमाइश 70 हाथ होगी। इब्न अब्बास फरमाते हैं इस जंजीर को पखाने के रास्ते से मुंह के रास्ते से दाखिल किया जाएगा, पखाने के रास्ते से निकलेंगी और पूरे बदन पर झुका कर इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया जंजीर कितनी बड़ी होगी, इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया आसमान से कोई पत्थर फेंका जाए तो जमीन पर एक रात में पहुंच जाएगा, लेकिन फरमाया इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये जंजीर इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, अगर इसके एक सिरे से पत्थर फेंका जाएगा तो दूसरे सिरे तक आने के लिए 40 साल लग जाएंगे, इतनी बड़ी जंजीर इसके बदन पर लपेटी जाएगी। फिर जिनका बाल लोगों का नाम है अमाल उनके पीठ पीछे से दिया जाएगा, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा, जिनका नाम है अमाल पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वो लोग मौत को पुकारेंगे। कुरान कहता है वो यसला सईरा, वो तो देखती आग में दाखिल होगा। ये दूसरी जगह है जब नाम अमाल तकसीम होंगे कोई किसी को याद नहीं करेगा। तीसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइंद सिरात कुल सिरात, जब वो जहन्नम के पुश्ते पर बिछाया जाएगा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा इन्नल जिस्रा अदक्कु मिन अश-शअरति व अहद्दु मिन अस-सैफ, कुल सिरात ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इब्न असकिर रहमतुल्लाह लिखा 15,000 साल का रास्ता है, 5,000 साल इसकी चौड़ाने, 5,000 साल इसके उतराने और 5,000 साल इसका सीधा चलना है। इतना लंबा रास्ता ये जहन्नम के पुश्त पर अल्लाह बिछाएंगे। अल्लाह के रसूल का फरमान इसके दोनों जानिब में आखिरें होंगे, जिसके बारे में अल्लाह का हुक्म होगा वो आखिर इसको पकड़ेंगे और जहन्नम में फेंक देंगे। यह ऐसा पुरखतर रास्ता हर एक को गुजरना है, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को इस पर से गुजरना है। दोस्तों अजीजों, ये महशर का हमने मुख्तसर तज़किरा
پیدا کیا. قیامت کے دن یہ حالات ہر ایک کے سامنے آئیں گے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. اس لیے دوستو عزیزو, درخواست ہے ہم اپنے آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارے, دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے, صرف مال کماتے کماتے اپنے آخرت کو داؤ میں نہ لگائے, صرف بچوں کا پیٹ پالتے پالتے اپنی آخرت کو نہ گوائے, بلکہ ایک غم ہو, ایک فکر ہو کہ میرے گھر میں کے کتنے لوگ مر کر چلے گئے, آخر مجھے بھی جانا ہے, تو میں اس کے تعلق سے کیا تیاری کر رہا ہوں, اس کی فکر آخرت کے لیے میں بیان ختم کر کے چلا جاؤں گا, آپ لوگ سن کے چلے جائیں گے. لیکن طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کے حاصل کرنے کا, آسان راستہ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کا, وہ دعوت کے کام کی محنت ہے, اللہ کے راستے کا خروج